Concept of electrolyte. An electrolyte consists of free moving ions and conduct electricity. आपका जो electrolyte है एक वो solution होता है जो basically free moving ions का बना हुआ होता है, and that will help to conduct your electricity. It can be made up of it can be acid, base, and or salt, or in molten or aqueous solution from the form are the electrolytes. There are some weak electrolytes and some are strong electrolytes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंटायरली जो है आयनाइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शली आयनाइज होता है, और आपका जो substance जो है which are unable to conduct electricity in molten state or in aqueous solutions form are called non-electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशंस हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट आर अनएबल टू कंडक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बेंजीन हो गया, ग्लूकोज, सक्रोज, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर electrolytes. So electrolytes, non-electrolytes, and electrolytes are also of two types. The number one is strong electrolytes and weak electrolytes are strong और weak में यही फ़र्क है कि strong जो है वो entirely ionized होगा और जो आपका weak है वो जो है वो partially ionized होगा. Moving towards the next topic, that is Faraday's law. Michael Faraday was a British chemist who greatly contributed in the field of electrochemistry. He observed that quantitative relationship between the current and amount of substance collected at the electrode. उसने क्या किया था? He conducted several experiments regarding electrolysis and put all those observations based on the electrolysis reactions into two laws. उसने क्या किया? उसने जितनी भी चीज़ें जो है ऑब्जर्व की, आपका करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो जितना भी कलेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रोड्स पे, उसने क्या किया? उसने जो है वो दो लॉज बनाए जिनको जो है आज हम लोग पढ़ते हैं. Faraday's law of electrolysis, the number one, your first law of electrolysis, and the second law of electrolysis. The first law of Faraday's basically state that the amount of any substance that is deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to quantity of electricity passes through the electrolyte. Simply ये है कि अमाउंट ऑफ जो आपका डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर? आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर. वो डायरेक्टली डिपेंड करता है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड. आपका जितना अमाउंट जो है वो आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उतना जो है आपका सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी जो आप पास करेंगे उतना जो है लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन योर इलेक्ट्रोड. जितनी बारिश ज़्यादा होती है उतना पानी आता है, जितनी कम बारिश होती है उतना कम पानी आता है. तो फ्राडेज लॉ जो है वो इंस्पायर था बिलावल जरदारी से. फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी सेम ही है कि जितनी आप क्वांटिटी जो है करंट की फ़्लो करवाओगे सब्सटेंस से उतनी जो है वो डिपॉजिशन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कम होगी तो आपका जो डिपॉजिशन लेवल है वो भी कम होगा. Okay, this is a mathematical expression of your Faraday's law. Here is M is directly proportional to the Q. M is the mass of ion formed or reacted at the electrode, or you can say that you can also use W directly proportional to A, where A is the substance deposited or liberated at the electrode and A is the current in ampere. Okay, आपका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, और जब आप जो है यहाँ पर आप जब रिमूव करोगे इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की साइन तो Z आएगा, where Z is the electrochemical equivalent. Okay, next is your Faraday's law, second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis is basically states that the amount of different substance deposited or liberated due to the passage of same quantity of electrons through different electrolytes are proportional to their chemical equivalent masses. Faraday's law दूसरा ये था कि आपका जो क्वांटिटी है, आपकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज विद डिपॉजिट और लिबरेटेड जो है वो आपका डिपेंड करता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर समझाती हूँ कि आप जो है
3 आप सॉल्यूशंस ले लें, एक सिल्वर नाइट्रेट का, कॉपर सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। तो तीनों जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आप डाल दें और उन पे जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट जो है वो फ्लो करवाएं। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपका जो सिल्वर है उसकी जो है वो जो कलेक्शन है वो ज़्यादा होगी और कॉपर की उससे कम होगी और एल्युमिनियम की सबसे लास्ट होगी। तो दैट इंडिकेट दैट कि आपका जो है वो सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम की जो है वो मासेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए जो है वो आयंस की जो डिपोजिशन है वो भी डिफरेंट है। ओके, alloy formation. Alloy is basically is a mixture of metals with metal or with another metal. आपका simply alloy formation क्या है कि एक जो है आपका सॉलिड है, मेटल है, उसकी जो है वो आप कंबाइन करवा रहे हैं उसको किसी और मेटल के साथ, या फिर वो नॉन मेटल भी हो सकता है, तो उसको जो है हम एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। एलॉय फॉर्मेशन जो है आपका बेसिकली आज आज तक जितने भी एलॉय जो है मिक्सचर जो मेटल के जो है वो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं वो 7,000 से ज़्यादा हैं, विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन द वर्ल्ड। एंड देयर आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ योर एलॉय फॉर्मेशन। ब्रास है आपका, जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास जो है वो आपका कॉपर और टिन का जो है वो आपका जो मिक्सचर है, और ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का जो है वो मिक्सचर है। कास्ट आयरन हो गए, स्टर्लिंग सिल्वर हो गए, हाँ गोल्ड हो गया, ये जो सारे जो चीज़ें हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपका जो एलॉय जो है कैन बी प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एलिमेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। आप डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जो है ना उनको मिक्स करके आप परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हो कि ब्रास और ब्रॉन्ज में जो है कॉपर दोनों में यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन जो ब्रॉन्ज में जो है ना कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा है, 78 to 90% है, और ब्रास में जो है 60 to 90% है। तो आप क्या करते हो कि मेटल और मेटल जब आप लोग जो है वो उनको जो है वो मेल्ट करवा के आप लोग, एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है एलॉय फॉर्मेशन करवाते हैं, तो फिर जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होती है आपके नॉर्मल मेटल से जो है ना। आपके जो मेटल्स होते हैं एलॉय फॉर्मेशन में जो है वो जो एलॉय होता है उसमें जो है वो हार्डर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है दैन योर प्योर मेटल। आपका जो नॉर्मल मेटल होता है उनमें जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इतनी खसूसियात नहीं होती जितनी कि एलॉय फॉर्मेशन के बाद जो है वो न्यू जो आपका एलॉय बनता है ना उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिक जो एलॉयज़ हैं उनके कुछ नाम हैं, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ड्यूरेनियम हो गया, सोल्डर, अमलगम हो गई, ये सारी जो है वो आपका वाइट गोल्ड हो गया, ये सारे जो है ना आपके एलॉय फॉर्मेशन है। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज प्रेजेंटेशन। ओके, टेक केयर।